اب آپ تمہاری میرے بیٹوں امین اور مامون کے بارے میں کیا رائے؟ میری رائے یہ ہے کہ وہ دونوں ہی ان پھلوں کی خوشبو اور ان پھلوں کے ذائقے کی طرح مختلف۔ ان دونوں میں کسے چاہتے ہو، امین کو یا مامون کو؟ مامون کو میرے آقا۔ کیوں ابا وہاب، جبکہ وہ دونوں ہی میرے صلب سے؟ اس لیے کہ مامون عقل مند اور چالاک ہے۔ ایسا کیوں ہے، جبکہ دونوں کا استاد بھی ایک ہے اور دونوں ایک ہی چھت کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا میرے آقا خلیفہ مشاہدہ نہیں کرتے؟ اگر دو مختلف چیزوں کو باہم ملا دیں تو وہ زیادہ مزیدار اور خوشبو والی ہو جاتی ہے۔ جانتا ہوں میں یہ۔ کیا خلیفہ محترم نہیں جانتے کہ بازار کرخ میں دوسرے جانوروں سے خچر کی اہمیت کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ وہ گھوڑے اور گدھے کے باہمی تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ پہلے والی مثال ہی کافی ہے، دوسری مثال کی ضرورت نہیں۔ بالکل صحیح کہا ابا وہاب۔ بہت تھک گئی ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر ہمارا کوئی… کہنا چاہتے ہو کہ اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو مشکل حل ہو جاتی؟ کیا ایسا نہیں؟ اب تو یہ ایک آرزو ہے، کیا ایسا نہیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور ہماری ضرورت ہے؟ اگر ہمارا بیٹا زندہ ہوتا تو آج وہ کڑیل جوان ہوتا۔ سفر بغداد نے ہمارا بیٹا ہم سے چھین لیا، اگر تم وہیں رک جاتی تو بہت بہتر ہوتا۔ مجھے بتاؤ بابا، ہاں کیا تم میرے چچا زاد نہیں ہو؟ کیوں نہیں؟ کیا ہمارے آپس میں کوئی تعلقات نہیں؟ کیوں نہیں تعلقات ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ کہ تم اس حالت سے اس حالت میں بدل گئے؟ یہ وہ نعمت ہے جو مجھے خدا نے عطا کی ہے۔ دیکھو ذرا، دیکھو یہ گھوڑا بھی خدا نے مجھے عطا کیا۔ جب اس پر سوار ہوتا ہوں، جب بھی اس پر سوار ہوتا ہوں تو یہ مجھے کرخ کے بازار کا اس طرح چکر لگاتا ہے۔ بہت کچھ دیکھتا ہوں، دائیں اور بائیں، بہت کچھ۔ تم کرخ کے بازار میں کیا دیکھتے ہو؟ کیا دیکھتے ہو؟ فقیر لوگوں کو جو سرمایہ دار ہیں اور سرمایہ داروں کو جو فقیر ہیں۔ ان لوگوں کی نشاندہی کرو گے تاکہ انہیں دولت مند کر دوں؟ تم کبھی بھی انہیں نہیں دیکھ پاؤ گے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے نگہبان آڑے آتے ہیں تاکہ تم بھی انہیں نہ دیکھ سکو، اور پھر تم بھی نہ اپنے دائیں دیکھتے اور نہ بائیں۔ چل میرے گھوڑے، چل بھاگ یہاں سے۔ نگہبان میرے آڑے آتے ہیں کہ سامنے نہ دیکھوں، اور پھر میں خود بھی دائیں اور بائیں نہیں دیکھتا۔ شہر میں کوئی اتفاق ہو گیا ہے کیا؟ ہاں، لگتا ہے ہمارے والی نے بغداد میں خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ اور سی بی کے لوگ؟ اکثریت ان کی حمایت میں ہے۔ یہ ابتدا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ انجام یہی ہے کہ والی مستعفی ہو جائے گا اور سی بی کے لوگ خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ شاید خلیفہ بغاوت کرنے والوں کو کچل دے اور اس کی جگہ جانشین مقرر کر دے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں۔ بیٹھ کیوں گئے ہو؟ بھیڑوں کا کیا کرو گے؟ انہیں میں گھر میں رکھوں گا۔ کیا پاگل ہوں اس بلوے کے دوران بھیڑوں کو چراگاہ لے جاؤں؟ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ جنگ میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا سلمہ، ولی ابن قریب کے حامی بہت ہیں، میرے پاس ان بھیڑوں کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں۔
जंगजुओं की वजह से ले जाने से डरते हो? क्या नहीं डरना चाहिए? लेकिन तुम तो इस जंग में किसी के हामी नहीं। जंग में सब चीजें जायज हो जाती हैं सलमा। सिपाही भूखे होते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की हजूर, मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की हजूर। नाम क्या है तुम्हारा? अली इब्ने जहब। कहाँ से आया है? साराए हिजाज से। चोरी क्यों की? भूख और प्यास से मैं और मेरी बीवी बयाबान सहरा में मर रहे थे। मैं बगदाद आ गया ताकि किसी से मदद मांगूं। बोलने दो इसे इब्ने रवी। आगे बोले इब्ने जहब। मैं जब कर्ह के बाजार पहुंचा, बहुत भूखा था। एक कबाब बेचने वाले के करीब गया, उससे इल्तिजा की कि कुछ खाने को दे दे, लेकिन उसने मुझे धुतकार दिया। 2 सीख कबाब उठाए और भाग खड़ा हुआ। दरोगा मेरे पीछे भागा और मुझे पकड़ लिया। मैंने उस दौरान 1 सीख खा ली। तुम क्या कहते हो इब्ने रवी? लेकिन हजूरे वाला मैंने सिर्फ 1 सीख कबाब चोरी की है। पता नहीं इसके बारे में अहकाम इलाही क्या है? मैं जानता हूँ। जो जानते हो कहो अबा वहाब। अच्छी तरह जान ले हुजूर, चोर 2 किस्म के होते हैं, एक पेशावर चोर और एक मजबूर चोर। पेशावर चोर का हाथ काट दिया जाता है, लेकिन जरूरत के तहत चोरी करने वाले चोर के लिए हाकिम वक्त की गर्दन उड़ा देनी चाहिए। ये हुक्म कहाँ से लाए हो अबा वहाब? ये हुक्म उसने दिया था जो मुसलमानों का आदिल व मुंसिफ हाकिम था। मैं तुम्हें इस गलती पर माफ करता हूँ। खुदा खलीफा की उम्र दराज और इसे बरकत हुक्म दे। देता हूँ कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की खुराक का बंदोबस्त किया जाए। खुदा खलीफा की तमाम मुश्किलात में इसकी हिफाजत करे। और तुम्हारी क्या जरूरतें हैं? खुद भी खाऊंगा और अपनी बीवी के लिए भी लेकर जाऊंगा। कुछ भेड़ें इसे दे दें ताकि ये उन्हें चराए और उनसे फायदा उठाए और दूसरों के माल पर हाथ न डाले। मैं 10 भेड़ें तुम्हें देता हूँ ताकि तुम उससे अपनी रोजी कमाओ। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाबे वाला, बहुत खलीफा शुक्रगुजार का हूँ। शुक्रिया अदा करना ही काफी है। चल खड़ा हो जा और जा। इब्ने रवी इसे बावर्ची खाने में ले जाओ ताकि खुद भी खाए और अपनी बीवी के लिए भी कुछ ले जाए। क्या कहते हो अबा वहाब? ये काम जो मैंने किया है सिरात मुस्तकीम था? अभी आप सिराते मुस्तकीम तक नहीं पहुंचे हैं हुजूर वाला। चल मेरे घोड़े। अबा वहाब, जिस आदिल हाकिम का तुमने तस्करा किया था कौन था? हाँ, चल मेरे घोड़े, चल चल चल। ऐ अबा मूसा, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो उन्होंने मेरे और मेरे भाई के लिए 10 बोरी गंदम विरसे में छोड़ी, 6 मेरे लिए और 4 भाई के लिए। मसला चूहों का है। चूहे 10 में से 6 बोरी खा गए हैं। अब हम दोनों उन 4 बोरियों को कैसे तकसीम करें? बाकी बचे हुए माल पर अपने वालिद की वसीयत के मुताबिक अमल करो। तुम दोनों का विरसा असल में 10 बोरियां थीं। जो बोरियां चूहे खा गए वो तुम्हारा नुकसान कहलाएगा, और जो बाकी बचे हैं अब असल में वो विरसा हैं। अब तुम ये जानना चाहोगे कि तुम्हारा हिस्सा कितना होगा। तुम दोनों का विरसा 4 को 10 पर तकसीम करो और ज़रब करो 6 से। जो जवाब आएगा वो बनेगा तुम्हारा हिस्सा। इस सूरत में तुम्हारा हिस्सा होगा 2 बोरी और 10/4, बाकी तुम्हारे भाई का।
खुदा का शुक्र है। खुदा का शुक्र है। खाओ बाबा। ओ, बहुत ज्यादा खा लिया। कहाँ चल दिए? काफ के बाजार जा रहा हूँ। सुबह सवेरे वहाँ क्या करने जा रहे हो? रियाया के मसाइल की देखभाल के लिए जा रहा हूँ। हमारी जगह बैठकर हमारा काम अंजाम देते हो। समझ गया। चल मेरे घोड़े चल। वालेकुम अस्सलाम इब्न रवि, क्या चाहते हो? अहम और जरूरी। वलीद इब्न तरीक सेबी में हमारे खिलाफ बगावत कर रहा है। उस चोर का इस काम से क्या मकसद है? वो हमारे दुश्मनों के फरीब में आ गया है। चाहता है वो उसे नहीं मिलेगा। इब्न रवि, जरा पोश फौज तैयार करो। कल फजर के बाद हम खुद उसके घर पर धावा बोलेंगे। जो मौजूद है उससे आधा करेंगे मेरे आका। यानी तमाम वो चीजें जो मसला बन रही हैं उन्हें आधा करेंगे। फिर इन दिरहमों का जज़र निकालेंगे, हासिल अदद को उससे ज़रब करेंगे। इस हिसाब से 6.25 दिरहम बनेंगे। उसके बाद निकाला गया जज़र उसमें से कम कर देंगे। जवाब 20.25 दिरहम होगा। उसके बाद 3 दिरहम हासिल होंगे। यानी फिर ये काम आखिर तक जारी रखेंगे मेरे आका। हम चाहते हैं कि तुम्हारे इस इल्म पर तुम्हें इनाम दें, अपनी राय दो। हुजूर का वकार बुलंद रहे। हमारा इल्म मुसलमानों के लिए फायदेमंद होना चाहिए, लिहाजा मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। हम तुम्हारी इस बात पर तुम्हें दुगना इनाम देते हैं। अगर जनाबे वाला इजाजत दे तो मैं ख्वारज़मी का इनाम मुकर्रर कर सकता हूँ। क्या राय है तुम्हारी बाबा? हुजूर, शतरंज के खानों को जिस तरह मैं बता रहा हूँ गंदुम के दानों से भर दें। यानी पहले खाने में 2 गंदुम के दाने रखकर शुरू करें और दूसरे खाने में इसे 2 बराबर कर दें। फिर तीसरे खाने में दूसरे खाने के 2 बराबर। इस तरह ये अमल आखिर तक जारी रखें। अफसोस है तुम पर बाबा। तुम ये चाहते हो कि इसकी इल्मियत का इनाम एक मुश्त गंदुम बने? लगता है जनाबे वाला मुझसे ज्यादा खुश नहीं है। ये कैसा हंगामा है उबैदा? लगता है खलीफा के सिपाहियों ने सीबी के गवर्नर पर हमला कर दिया है। अब वहाब, जरा रुकना। अबा मूसा, क्या तुम एक मुश्त गंदुम के बारे में मुझसे बात करना चाहते हो? मुझे पता नहीं था कि तुम रियाजी में मुझसे बढ़तर हो। जो तजवीज तुमने खलीफा को दी है वो उसे उम्र भर नहीं निभा सकेगा। क्या खलीफा शतरंज के खानों को तुम्हारे लिए बढ़ सका? वो कैसे इस काम को कर सकता है? खुदा की कसम, जितना गंदुम उसके इक़्तिदार में है, दीलम से लेकर ताशकंद तक उसका आधा खाना भी नहीं भर सकेगा। चल मेरे घोड़े, चल भाग।
उबैदा, भेड़ों को चिरागा नहीं ले जाओगे? क्या हो गया है तुम्हें? लगता है कोई भारी जिम्मेदारी है तुम्हारे कंधों पर। असल में सलमा, पता नहीं इन दिनों में क्यों इतना बेताब हूँ। एक गवर्नर गया, दूसरा आ जाएगा। सीबी तो अपनी जगह कायम है। ये सब मेरे लिए अहम नहीं है सलमा, एक गवर्नर का जाना और दूसरे का आना। फिर क्या सोच रहे हो तुम? क्या हम मियाँ बीवी एक दूसरे के राजदा नहीं? कोई खास बात नहीं सलमा, दरअसल कल रात मैंने एक ख्वाब देखा था जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कहीं कारोबार में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं। खुदा का शुक्र है, मेरे दिल को सुकून मिला। तुम्हारे दिल को सिर्फ तिजारत में फायदे से सुकून मिलता है, तुम्हारा दिल मेरी हालत पर कभी रहम नहीं खाता। क्या ख्वाब देखा तुमने उबैदा? क्या फिरौन का ख्वाब देखा? ख्वाब में देखा कि बहलूल ने मुझे कैद कर रखा है। बहलूल? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उसने अपना डंडा नहीं दिया घोड़े की जगह, क्योंकि तुम्हें तो असल घोड़े की जरूरत है। लेकिन अजीब बात यह है कि बहलूल मुझे मारना चाहता था और हारून रशीद के दरबारी मुझे बचा रहे थे। मेरे ख्याल में तुम्हारा ऐसा कोई काम नहीं कि ख्वाब को इतनी अहमियत दो। पता नहीं क्या मकसद है सलमा, लेकिन इस ख्वाब से मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया हूँ। जब तक बहलूल तुम्हारा कातिल है, फिक्र की कोई बात नहीं मेरे अजीज शौहर। लोगो इधर आओ। आओ मेरी बात सुनो। लोगो सुनो, खलीफा सीबी की जंग में कामयाब हो गया। सुनो लोगो, खलीफा सीबी के गवर्नर से जीत गया। खलीफा जिंदा रहा और गवर्नर मारा गया। लेकिन अगर कल ये हालात बदल जाएं, गवर्नर खलीफा पर कामयाब हो जाएगा और फिर गवर्नर और खलीफा दोनों मर जाएंगे। अब आप क्या कहना चाहता है तू? पहली बात जो तुमने बताई है समझ में आती है, दूसरी बात समझ में नहीं आती। क्या ऐसा मुमकिन है खलीफा और गवर्नर दोनों ही मर जाए? अगर गवर्नर खलीफा को मार दे तो फिर वो गवर्नर नहीं रहेगा, बल्कि खुद खलीफा बन जाएगा। लोगो, कहाँ थे तुम इब्न रवी? ये तुम लेकर आए हो। उसकी एक वजह है। जब मैं सो रहा था तो बड़ा डरावना ख्वाब देखा मैंने। वही ख्वाब खुशी के बजाय परेशानी का सबब है। खुद को सबीन में पाता हूं, 3 आदमियों के दरमियान जिन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाली हुई हैं। उनका बड़ा वलीद इब्न तरीक था, उनमें दूसरा अबू वहाब और उनमें तीसरा नाम उसका नाम उबैद इब्न नीता ही था। ये 3 लोग अपनी तलवारों से मुझ पर हमलावर होते हैं और मेरे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। नहीं इब्न रवी, नहीं। मेरा बाप मेरे जद मंसूर के बारे में कहता था कि अबू मुस्लिम खुरासानी ने उसे बताया था कि उसके मारे जाने से चंद घंटे पहले अबू मुस्लिम ने 2 अफराद को ख्वाब में देखा था। उनमें से एक ने गर्दन पर नेज़े से वार किया और दूसरे ने तलवार से ज़रब मारी। वो दोनों अफराद भी मेरे जद
मंसूर के रिश्तेदार थे। उनमें से दूसरा जो अबा वहाब है, मुझे उससे कोई खौफ नहीं। इसी वक्त जाओ उबैद इब्न सताई को सबीन से हमारे पास ले आओ, ताकि उसे यहाँ बुलाकर मालूम करें कि वो क्या चाहता है। उबैदा, परेशान ना हो सलमा। परेशान क्यों ना हो, ना जाने तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं ये। खुदा पर भरोसा रखो, इन भेड़ों की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है। मेरी गैर मौजूदगी में इनकी अच्छी तरह देखभाल करना। अगर बेटा हो तो उसका नाम लईस रखना। मैं उसका नाम उबैदा रखूंगी। मेरी बात सुनो। जुनैद आपकी खिदमत में हाजिर है आका। तुम्हारी राय उस ख्वाब के बारे में क्या है जिसने मुझे परेशान किया हुआ है? क्या कोई आम ख्वाब है या खास? इन दोनों में क्या फर्क है? आम ख्वाब है मेरे आका, शराब की मानिंद जिसकी कोई हकीकत नहीं, लेकिन खास ख्वाब उस शराब की कहानी बताता है जो असल हकीकत की मानिंद है। तो मेरा ख्वाब कौन सा है? ये एक असल मुसल्लम ख्वाब है मेरे आका। आप अमीर खलीफा और तमाम खास लोगों के आका हैं। मेरे आका रशीद, क्या आपने ये ख्वाब दिन में देखा था या रात को? क्या दिन और रात के ख्वाब में कोई फर्क है? बेशक मेरे हुजूर, रात का ख्वाब ख्याल और इबहाम है, दिन का ख्वाब एक हकीकत है। इसका मतलब है कि मेरा ख्वाब एक हकीकत था, क्योंकि इसे मैंने दिन में देखा है। क्या उबैदा मर गया है? वो खलीफा हारून की कैद में है। क्या कोई वाकया पेश आया सलमा? बहुत से मसले हो गए हैं। बेहतर है कि हम यहाँ से कहीं और चलें। यहाँ बहुत से जासूस हैं अब्बा वहाब। क्यों नहीं, चलते हैं, चलते हैं। खुदा खलीफा को हर मुसीबत से दूर रखे और उसे ताकत और तवानाई अता करे और सबके लिए खैर और बरकत का सबब बनाए। और बहुत हो गया जुनैद, काफी है, काफी है, काफी है। तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा। ये लो। खुदा हमारे खलीफा को खैर और आफियत अता करे और उसे दुनिया वालों के लिए रहनुमाई का सबब करार दे। शुक्रिया आका, शुक्रिया मेरे आका। वालेकुम अस्सलाम इब्न रवी। उसने मेरी परेशानी मजीद बढ़ा दी इब्न रवी। जुनैद कहता है हुक्मरानों का दिन में ख्वाब देखना पैगंबरों के ख्वाब की मानित है। मशकूक शख्सियत है जिसका बातिन उसके जाहिर से मुख्तलिफ है। दूसरी जानिब से वलीद इब्न तलीब का दुश्मन है जो कौमी इख्तिलाफ की वजह से है। और फिर ये कि उसे दोस्ती में बेहिसाब पैसे दिए। कहता है वो उसका दुश्मन है क्योंकि उसने हमारे खिलाफ यानी खलीफा के खिलाफ बगावत की है। किस तरह? नहीं इब्न रवी, नहीं। उसे कैसे मार दूं जबकि उसकी दुश्मनी अभी साबित ही नहीं हुई। वो जेल में रहेगा उस वक्त तक जब तक ये शक और खौफ दिल से खत्म नहीं हो जाता। उसका गुनाह इतना था कि वो उस गवर्नर के पास चला गया। काश वो कभी उसके पास न जाता और अपनी मुश्किलात के हल के लिए उससे मदद ना मांगता। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं समझता खलीफा को उनकी मुलाकात का कोई इल्म हुआ हो। कोई और बात हो सकती है। क्या बात हो सकती है? मुमकिन है वो खुद को हाकिम या खलीफा शुमार करना चाहता। मुमकिन है कि अचानक खलीफा बन जाए वो। क्यों नहीं हो सकता, जबकि उसकी भेड़ बकरियां भी उसकी पैरवी करती थी। बेचारा अपनी असल हालत में आ गया। जो भी इसे बताया सब जाया हो गया। और तू बेचारी सलमा, इस दीवाने के अलावा तुझे और कोई नहीं मिला कि अपने दिल के राज उसे बताती। मेरे आका वजीर, मेरे आका वजीर। सलमा मूली की बेटी, सीबी से।
मेरा शौहर बेगुनाह पकड़ा गया है। उबैद ताई। सुन लिया फजल? बाबा, यहाँ अगर तुमने ये बताया था कि ख्वाब देखा है, वो ख्वाब मुझे बताओ। चाहता हूँ ख्वाब काजी जुनैद को बताऊं, क्योंकि मैंने सुना है कि वो अवाम खास के ख्वाबों की ताबीर बताने का बड़ा माहिर है। तुम क्या कहते हो जुनैद? ये एक पागल है जनाब वाला, मैं इससे कोई बहस नहीं करूंगा और इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। इतनी सख्ती से पेश ना हो जुनैद, हमारा दिल शोख मिजाजी को तरस गया है। मैं सुन रहा हूँ बाबा, अपना ख्वाब सुनाओ। मैं सिर्फ काजी को सुनाऊंगा। मुझे इसकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है जनाब वाला। सुकून और इत्मीनान से सुनो जुनैद, अपना ख्वाब बयान करो। दिन के वक्त मैंने ख्वाब देखा कि मैं अचानक खुदा का पैगंबर मुंतखब हो गया हूँ और इंसानों को सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत कर रहा हूँ। अचानक पैगंबर बन गए? तुम्हारा मौजज़ा क्या है? मेरा मौजज़ा यह है कि मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ। मुर्दों को कैसे जिंदा कर देते हो? ये क्या करना चाह रहे हो बाबा? पहले इस काजी को कत्ल करूंगा, फिर कुछ देर बाद इसे जिंदा कर दूंगा। हुजूर, इसे हुक्म दे के मेरी गर्दन पर से तलवार को हटा ले। ये हकीकत में पागल है। क्या तुम्हें शक है जुनैद कि पैगंबर खुदा के इज़्न से मुर्दे को जिंदा कर देता है? मुझ पर खुदा की लानत हो जो ऐसे हुक्म पर शक करूँ बाबा। लेकिन तू तो खुदा का पैगंबर होने का दावा करता है तो नहीं? लेकिन तुमने खुद दिन के वक्त के ख्वाब को सही कहा है। मैंने पैगंबर के ख्वाब का कहा था जो सही होता है। हाँ, सही कहा तुमने। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ बाबा। हम तुम्हारी बारीक बीनी और होशमंदी से खुश हुए। अपनी हाजत बयान करो। मेरी 3 हाजतें हैं। हाँ, बयान करो। पहली ये कि उबैद ताई जिसे बेगुनाह कैद किया हुआ है आजाद कर दें। दूसरी ये कि इस काजी को झूठी ताबीर बयान करने पर कैद कर दें। और तीसरी ये अपने इस वजीर इब्ने रवी को हुक्म दे कि उबैद और उसकी बीवी को सीबी ले जाए और सफर के दौरान उनके खाने पीने का ख्याल रखे और तमाम इखराजात अपनी जेब से अदा करे। सब्र करो इब्ने रवी, तुम्हारी पहली और दूसरी हाजत तो मैं समझ गया, लेकिन तीसरी हाजत मैं नहीं समझ सका। सुना है आपके वजीर ने एक बेगुनाह औरत को सजा दी है जो आपकी रियाया में से है। इसने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। अब्बा वहाब, यकीन नहीं आता कि ये तुम हो। तुम उबैद ताई हो ना? इतनी जल्दी भूल गए मुझे अब्बा वहाब। तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत एहसान है। नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला का एहसान हक होता है उसकी मखलूक पर। मैं चाहता हूँ कि कुछ दूं तुम्हें। ओ, नहीं नहीं नहीं, इसे किसी ऐसे शख्स को दो जो मुझसे ज्यादा जरूरतमंद हो।